Hello, friends. Welcome back to the Academy. Hope you all are doing good. In humanities, theories lay the foundation of a subject. Theories are the ideas organized in a logical order. It assumes a perspective and elaborates that perspective. Theories के through, we try to understand the perspective comprehensively. So, from now onwards, we are going to discuss all the theories of public administration one by one. So without wasting any further time, let's start. Today, we will discuss about one of the most important theory of public administration, that is scientific management theory. From now onwards, I will be bilingual so that it will be easy for each one of us to understand the concept. This is the content map. इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे और इसी सीक्वेंस में हर पॉइंट को अच्छे से समझेंगे. Well, theory discuss करने से पहले let's shed some light on the person who gave this theory. Scientific management theory was propounded by Frederick Winslow Taylor in the first decade of the 20th century. It was the first coherent theory of administration. Coherent क्या होता है? जिसको कि extensively पढ़ा जाए, detail में पढ़ा जाए. However, there is an interesting fact here. टेलर ने ये थियोरी दी जरूर थी, बट ही वॉज नॉट द ओरिजिनेटर ऑफ दिस थियोरी. थिंकर्स लाइक चार्ल्स बेबेज, फ्रेडरिक हेल्सले, हेनरी मेटकैफ एक्सेट्रा डेवलप्ड एंड यूज्ड सम ऑफ द मेथड्स ऑफ दिस प्रिंसिपल. कौन से मेथड्स? जो टेलर ने आगे अपनी थियोरी में बताए हैं. One more thing, the term scientific management was coined by Louis Brandeis in 1910. All these informations are important for your exams perspective. ये सारे info PPT में included नहीं है क्योंकि फिर बहुत lengthy हो जाता. So if you want, just pause the video and note it down. Next thing, scientific management theory is also known as Taylorism. Taylor is also known as father of scientific management. Taylor was an author as well. He wrote several books like A Piece Rate System, Shop Management, Art of Cutting Metals, and Principles of Scientific Management. All these books are important. Please try to remember them along with the years of publication. Okay, exams में क्योंकि years and books का matching आ सकता है. So last thing, Taylor was an engineer by profession. Taylor के बाद भी there are several thinkers who contributed to the growth of scientific management. Some of them are Frank Gilbert, H. Emerson, S. E. Thompson, etc. So, next point is, what is scientific management theory? So, scientific management theory was concerned with application of scientific methods to managerial practices and production processes in industrial organization. It focused on the lowest level of the organization. This is the one of the most important feature of this theory as well. देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लाइक मैनेजमेंट लेवल और द अपर लेवल जहाँ पे कि डिसीजंस लिए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, एंड द लोअर लेवल और द शॉप लेवल जहाँ पे कि एक्चुअली में वर्क होता है. So Taylor के अकॉर्डिंग there should be no inherent conflict between employees, workers and consumers. अब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, एक एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक फर्स्ट. सो बिकॉज दोनों के अपने इंटरेस्ट होते हैं. एम्प्लॉयज वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. अब वो कैसे पॉसिबल है? बाय कॉस्ट कटिंग और लो पेमेंट ऑफ वेजेस, या फिर वर्किंग इन्वायरमेंट में कम इन्वेस्टमेंट करके. सो बेसिकली एक वन टर्म में कहीं तो कॉस्ट कटिंग के थ्रू. And on the other hand, laborers want more and more wages, good working condition. So all these things leads to the conflict. And if conflict arises, workers intentionally slow down the process of work or delay the work. Taylor termed this system as solidering. सॉलिडरिंग का मतलब है इंटेंशनली काम को कम करना, जानबूझकर वर्कर्स के एंड से काम को कम करना. सो ये टेलर का कॉइन किया गया टर्म था. दिस इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड.
So this leads to conflict, okay? So scientific management theory stressed upon specialization, productivity, technical competence, and rationality for improving the organization efficiency and economy. Assumptions of scientific management theory. Look, कोई भी थ्योरी जब बनाई जाती है तो कुछ हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं. अब हाइपोथेसिस क्या होते हैं? इमेजिनरी कंडीशंस, assumptions, ओके? तो सिमिलरली साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बनाते टाइम टेलर्स ने भी कुछ assumptions करी. What are the assumptions? These are the three assumptions. Okay, first assumption is the organizational functioning can be improved with the application of scientific method. तो टेलर के अकॉर्डिंग अगर साइंटिफिक मेथड अप्लाई किए जाएं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. ओके, नेक्स्ट अजम्पशन इज अ गुड वर्कर इज वन who does not initiate action but accept the orders of the management. तो अकॉर्डिंग टू टेलर एक अच्छा वर्कर वही है जो अपनी तरफ से कुछ एक्शंस ना ले, अपनी तरफ से कुछ ना करे, कोई क्रिएटिविटी ना रखे अपनी, बस मैनेजमेंट के दिए ऑर्डर्स को implement करते. Third assumption is every worker is an economic man. So although it's a controversial assumption जिसकी वजह से आगे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई है टेलर की, लेकिन इस assumption के थ्रू एक ह्यूमन बीइंग और हर ह्यूमन बीइंग इकोनॉमिक मैन होता है. अगर उसको प्रॉफिट दिखेगा, अगर उसको ग्रोथ दिखेगी तो वो अपना बेस्ट देगा, ज्यादा से ज्यादा काम करेगा. So these are the three assumptions. And here we end up with the introduction of scientific management theory. Now, the next point is why scientific management theory was introduced. There is a famous saying, necessity is the mother of invention. जब जरूरत पड़ती है तभी हम कुछ इन्वेंट करते हैं. तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? So for understanding that, we need to understand the economic condition of USA at that time. 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुके थे. बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ सडन स्पाइक इन डिमांड ऑफ कमोडिटीज एंड ह्यूमंस एज वेल. उस टाइम पे ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं होती थी, देयर वाज मैनुअल मशीन्स जहां पे कि लेबर्स को काम करना होता था. तो काम तो बहुत था लेकिन करने के लिए लोग नहीं थे, लेबर्स नहीं थे. लेबर्स आर बिजी इन फाइटिंग द वॉर्स. So all these leads to scarcity of resources and it further affect the industrial productivity negatively. अब इसका impact क्या हुआ? There was a need to increase efficiency of workers to increase productivity. For example, suppose in an organization there are 10 workers, 10 लोग हैं but काम वहां पे 20 लोगों का है. तो organization क्या करेगी? There is two ways. Either वो और 10 वर्कर्स हायर कर सकते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग 10 वर्कर्स हैं उनसे ही 20 लोगों का काम करा सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टेड फॉर द सेकेंड वन. तो इसके लिए क्या जरूरत था? वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना. तो वो किससे की गई? साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी से की गई. द नेक्स्ट पॉइंट इज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, टाइम एंड वर्क. उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स थे उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना था, उसलिए भी इस थियरी की जरूरत थी. तो इन सारे रीजंस की वजह से साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी एग्जिस्टेंस में आई. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी के 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं. दे आर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, harmony not discord, cooperation not individualism, and development of each man to his greatest efficiency and prosperity. So all these principles को हम one by one अच्छे से समझेंगे. So the first principle is science not rule of thumb. According to Taylor, every work has a science behind it. हर काम के पीछे कोई ना कोई साइंस होता है. साइंस का यहाँ मतलब है रूल्स एंड लॉज. ओके, कैसे रूल्स कैसे लॉस, उस काम को बेस्ट तरीके से करने का एक लॉ होता है. सो टेलर सजेस्टेड देयर शुड बी आइडल वर्किंग मेथड्स which saves the worker from unnecessary criticism and enables the management to get maximum work. तो
टेलर चाहते थे कि हर काम को करने का एक बेस्ट वे दिया जाए, जिसकी वजह से वर्कर्स को क्रिटिसिज्म ना टॉलरेट करनी पड़े मैनेजमेंट की तरफ से। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट को भी अपना मैक्सिमम वर्क मिले। तो he suggested one best way of doing a job. For example, अगर चाय बनानी है तो there is a best way of doing that work. एक परफेक्ट तरीका है, उसी तरीके से जितनी बार बनाई जाए तभी चाय अच्छी बनेगी इन टेलर्स लैंग्वेज। सो सिमिलरली हर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के हर काम को करने का टेलर ने एक बेस्ट वे सजेस्ट किया। Such development of science of work enable the organization to produce more, which enable workers to receive higher wages and much larger profit for the management. तो इस प्रिंसिपल की वजह से मैनेजमेंट भी खुश थे क्योंकि उनके पास ज्यादा प्रॉफिट था और वर्कर्स भी खुश थे क्योंकि उन्हें ज्यादा वेजेस मिल रही थी। The next principle is harmony, not discord. In this principle, टेलर ने सजेस्ट किया कि लेबर्स का सिलेक्शन एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उस सिलेक्शन के टाइम एक प्रॉपर टेस्ट लिया जाए जिससे कि उनकी फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को जज किया जा सके, वेदर दे आर परफेक्ट ऑफ डूइंग द टास्क और नॉट। और सिलेक्शन के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए उस काम को करने की। टेलर के अकॉर्डिंग इवन आफ्टर सिलेक्शन ऑन अ रेगुलर इंटरवल वर्कर्स का टेस्ट होना चाहिए टू चेक वेदर दे आर still capable of doing that work or not, they are doing their work properly or not। तो उसको चेक करने के लिए टेलर ने सजेस्ट किया कि हर कुछ एनुअल इंटरवल्स पे वर्कर्स का टेस्ट लिया जाए। दोज वर्कर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दे आर वेल एंड गुड, दोज वर्कर हु आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क उनको दोबारा से ट्रेनिंग दी जाए। इफ दे इम्प्रूव्ड तो अच्छी बात है एंड इफ नॉट दे शुड बी रिमूव्ड, क्योंकि ऐसे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बर्डन बन जाएंगे इंस्टेड ऑफ एन एसेट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। In this principle, Taylor suggested there should be harmony between the workers and the management. Workers and management तो अलग नहीं है, they have to work together to earn maximum out of their work. Workers को भी management की जरूरत है, मैनेजमेंट को भी वर्कर्स की जरूरत है। मैनेजमेंट को वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, वॉट एवर द इश्यूज वर्कर्स फेस कर रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड वर्कर्स को भी अपना बेस्ट देना चाहिए जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, उससे उनका भी फायदा होगा और मैनेजमेंट का भी फायदा होगा। The last principle is the development of each man to his greatest efficiency and prosperity. इस प्रिंसिपल में टेलर कह रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टेलर का अजम्पशन है एवरी मैन इज एन इकोनॉमिक मैन। अगर वर्कर्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखेगी देन ओनली दे विल गिव देयर बेस्ट, otherwise they will reduce the work intentionally. So these all are the 4 principles of scientific management given by Taylor. So next is techniques of scientific management theory. So these 7 are the techniques given by Taylor in his scientific management theory. पहले की तरह इन सारे principles को again हम one by one discuss करेंगे। So let's move on. Yeah. Functional foremanship. This is one of the most important technique of scientific management theory. So what is functional foremanship? Generally एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है, और हर वर्कर अपने रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है, मतलब उनसे ऑर्डर्स लेता है और उनको रिपोर्ट करता है। टेलर यूजुअली टॉक्स अबाउट स्पेशलाइजेशन। So what he suggested, एक सुपरवाइजर प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं कर सकता है काम के हर एस्पेक्ट को। So what Taylor suggested is he divided work at the supervisory level. Under functional foremanship, the worker receives order from 8 different supervisors based on their specialized work. Functional foremanship के अंदर 8 सुपरवाइजर हैं और इन 8 को टेलर ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है।
4 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, जो कि काम को कैसे करना ये प्लान करेंगे, एंड द अदर 4 सुपरवाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वर्क। वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करना अदर 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जो प्लानिंग वाले हैं दे विल सिट इन द ऑफिस, और जो एग्जीक्यूशन वाले हैं दे विल बी एट द फ्लोर विद द वर्कर्स। वो फ्लोर पे वर्कर्स से बीच रहेंगे और उनको असिस्ट करेंगे। सो फर्स्ट प्लानिंग सुपरवाइजर्स आर ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनरी। सो ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क डिसाइड करेगा कि कैसे काम को करना है, क्या काम करना है और कैसे काम को करना है। इंस्ट्रक्शन क्लर्क डिसाइड करेगा क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट वर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करेगा कि कितना टाइम लगना चाहिए और कितना कॉस्ट लगना चाहिए, मतलब व्हाट इज द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट वर्क। एंड द शॉप डिसिप्लिनरीज विल इंश्योर कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन हो एट द शॉप लेवल। ओके, ऐसा ना हो वर्कर्स आपस में ही लड़ने लग जाए, सो दैट शुड नॉट हैपन। द अदर एग्जीक्यूशन बॉसेस आर गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस। अब इनका क्या काम है? गैंग बॉस का काम है लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, लोग आपस में मिलकर काम करें। इफ इट्स अ टीम वर्क एवरीबॉडी शुड वर्क टुगेदर। स्पीड बॉस का काम है ये इंश्योर करना कि जो रिस्पेक्टिव स्पीड बॉस का काम है ये इंश्योर करना कि जो रिस्पेक्टिव टारगेट सेट किए गए हैं बाय द प्लानिंग सुपरवाइजर्स वो कंप्लीट हो। इंस्पेक्टर का काम अगेन यहाँ पे इंश्योर करना है क्वालिटी एंड डिसिप्लिन। रिपेयर बॉस का काम है मशीन्स को अप टू द मार्क रखना, मतलब किसी प्रॉब्लम की वजह से डिले नहीं होना चाहिए वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि उस टाइम पे मैनुअल वर्क्स थे तो मशीन खराब होना या किसी टाइप की प्रॉब्लम बहुत कॉमन थी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वर्क डिले ना हो और इनएफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में ना आए, तो ये इंश्योर करना रिपेयर बॉस का काम था। तो दीज आर द 8 सुपरवाइजर्स जिसको कि हर वर्कर रिपोर्ट करता था और अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में उनसे इंस्ट्रक्शंस लेता था, उनसे ऑर्डर्स लेता था। So this is all about functional foremanship. Through functional foremanship, Taylor tried to separate planning from execution. So this is the first principle. The next is motion study. So motion study refers to the study of productive movement. अब उस टाइम पे बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी, यूजुअली वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर वर्क। तो एक काम को करने के लिए कितने स्टैंडर्ड मूवमेंट्स होनी चाहिए ये स्टडी होती थी मोशन स्टडी में। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. Standardization of work refers to developing standard for every business activity to gain or to maximize efficiency. तो टेलर का बेसिक आइडिया, वन वे ऑफ डूइंग अ टास्क विल ब्रिंग एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन. नेक्स्ट टेक्निक इज मेथड स्टडी. मेथड स्टडी में यूजुअली वन बेस्ट वे ढूंढा जाता था, किसी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है, दैट इज फाइंड अंडर दिस मेथड स्टडी. नेक्स्ट इज टाइम स्टडी. टाइम स्टडी में अगेन एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए उस काम को करने का, ये इस स्टडी के अंदर देखा जाता था. फैटीग स्टडी, इट सीक्स टू डिटरमिन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क. एक काम को कंप्लीट करने के ड्यूरेशन के बीच में वर्कर को कितनी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए, दैट इज स्टडीड अंडर फैटीग स्टडी. The last is differential piece rate system. This is again the important feature. इस टेक्निक में डिफरेंशिएट किया जाता था एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में. कैसे? इसमें वेजेस को प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दिया था. सो अंडर दिस टेक्निक टेलर लिंक
wages and productivity. The standard output per unit established. एक दिन में कितना स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए था ये फिक्स कर दिया गया. उसके बाद दो टाइप के पेमेंट सिस्टम बनाए गए, वेजेस सिस्टम बनाए गए. वन फॉर दोज वर्कर्स हु मेट दैट स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड को पूरा कर देते थे, जो उस टारगेट को कंप्लीट कर लेते थे, उनको हायर पेमेंट सिस्टम के अंदर पेमेंट की जाती थी. एंड द अदर इज द लोअर वन, दोज वर्कर्स जो कि उस टारगेट को मीट नहीं कर पाते थे, दे आर पेड लोअर पे रेट सिस्टम, राइट. तो इससे क्या होता था, जो एफिशिएंट वर्कर्स है और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके बीच में एक डिफरेंशिएशन हो जाती थी. जो एफिशिएंट वर्कर है वो रिवॉर्डेड होता था और जो इनएफिशिएंट वर्कर है दे आर पनिश्ड. सो दीज ऑल आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी. नाउ नेक्स्ट इन द रो इज क्रिटिसिज्म ऑफ एसएमटी. अब काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्रिटिसिज्म उसकी जरूर होती है. तो सिमिलरली साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी को भी काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट दिस थियरी वाज क्रिटिसाइज्ड एज मैकेनिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्यों इसको मैकेनिकल थियरी क्यों कहा गया? बिकॉज टेलर्स ने सजेस्ट किया था देयर शुड बी वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द टास्क. एक काम को करने का एक ही तरीका होना चाहिए और वर्कर्स शुड नॉट टेक एनी इनिशिएटिव. मतलब वर्कर्स कोई अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट नहीं करेंगे, जो मैनेजमेंट ऑर्डर देगी वो उसको फॉलो करेंगे. तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस ह्यूमंस बिकम लाइक अ रोबोट. बस एक मशीन की तरह उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था. तो ये कहना था क्रिटिक्स का कि इस थियरी के अंदर टेलर ट्रीटेड वर्कर एज अ मैकेनिकल ऑब्जेक्ट. तो इट इज क्रिटिसाइज्ड एज मैकेनिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज पार्शियल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. As I told you earlier, there are two levels in an organization. First is the top level, other is the shop level. Now, SMT is focused on shop level, जहां पे कि workers काम करते हैं. तो critics का कहना था कि what about the upper level, what about the management level? अब management के लोगों को कैसे काम करना चाहिए ये कौन बताएगा? Taylor didn't talk about that. So that's why this theory is criticized as partial theory of organization. Next is underestimated and oversimplified human motivation. सही बात है, according to Taylor, humans भी सिर्फ पैसों से मोटिवेट हो सकते हैं, which is not true. There are other factors as well जो कि human को मोटिवेट करता है, like appraisal. तो that's why several behavioral thinkers criticize Taylor on this aspect. Next is threat टू ट्रेड यूनियन. अब ट्रेड यूनियन को क्या थ्रेट था, इन्होंने क्यों इस थियरी को क्रिटिसाइज किया? बिकॉज जब टेलर की थियरी को इंप्लीमेंट कर दिया गया, देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, तो ट्रेड यूनियन का रोल खत्म हो गया. अब ट्रेड यूनियन का रोल क्या होता है? दे यूजुअली टॉक टू द मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द वर्कर्स. वर्कर्स का के बिहाफ पे ये उनकी बात रखते हैं मैनेजमेंट के सामने. तो जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, जब कोई इशू ही नहीं है, तो क्या डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से जाकर? सो इनका रोल खत्म हो गया. दैट्स व्हाई ये दे बिकम यूजलेस. तो इस वजह से इन्होंने क्रिटिसाइज किया इस थियरी का. लास्ट क्रिटिसिज्म केम फ्रॉम मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अब उस टाइम पे क्या था, सर्टिफिकेशन वाज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. जो पर्सन थोड़ा सा स्किल्ड था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, वो जनरली मैनेजर बन जाया करता था. बट टेलर सेड कि नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. हर पर्सन के पास एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस पोस्ट पे वर्क करने के लिए. अब मैनेजर्स के पास तो उस टाइम पे मैनेजर्स के पास कोई सर्टिफिकेशन थी नहीं, इनकी जॉब थी खतरे में, तो डेफिनेटली कोई भी भाई क्रिटिसाइज करेगा. तो इस वजह से मैनेजर्स वर अगेंस्ट दिस थियरी. देयर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल जिस बेसिस पे इस थियरी को क्रिटिसाइज किया गया, बट from this theory's point of view, this criticism is more than enough. Now, the last part is significance of principles of management. क्या significance है इस theory की? So, आज भी इस theory की काफी significance है. इस theory ने काफी सारी new
चीजें इंट्रोड्यूस करी थी. फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक डिसीजंस, ट्रेनिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस थियोरी ओनली. टेलर ने ही ट्रेनिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था थ्रू दिस थियोरी. उसके पहले ट्रेनिंग पे उतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता था. उसके बाद मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में एक पॉजिटिव लिंक क्रिएट किया इस थियोरी ने. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है कंपनी की टूवर्ड्स द वर्कर, उसको फुलफिल करने में हेल्प करी. तो दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थियोरी. So, the crux of this theory is given in this quote by Taylor itself. It says that the principal objective of management should be to secure the maximum prosperity for the employer, coupled with the maximum prosperity for each employee. Along with the employee should also get their share, so both will feel motivated and work properly. So this is all about this theory. I hope this video is helpful for you, and if yes, keep supporting and stay connected. If you have any doubts or any feedback, please feel free to share them with me on this ID. I will try to address them. Thank you and have a nice day.